السلام علیکم خواتین و حضرات. شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم, اور آج ہماری شو کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد سریلے خان, ڈبے خان جی وہ پائے, اور ان کے جگر کے ٹکڑے, ان کے انتہائی لاڈلے بھتیجے استاد پونڈ خان. چیزیں بازی نہیں چھڑتا ہے اینکر بھی. دیکھو نا ذرا جگر کا ٹکڑا, آپ خود ہی کہتے ہیں, جگر کا ٹکڑا ویکھ ہی لگتا ہے کہ ہیپاٹائٹس دی دوائی لینی پینی. آپ خود ہی کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے. بھائی جان سرکار میں دے بڑے بھرا دی گل کرن دے اساں. اچھا, جو اسلام آباد ہوتے ہیں. اچھا آپ کے پاپا اسلام آباد میں ہوتے ہیں؟ جی اسلام آباد ہوندے جی, گھنٹہ کو روز اسلام آباد ہوندے. کیا مطلب؟ لاہوروں اسلام آباد ویگن چل دی اودے وچ کنڈکٹر ہے جی. تو ویگن جنی دیر اوتھے سواریاں بھر دی ہے نا جی, اونی دیر ہی وہ اسلام آباد ہوتا ہے. جب تو ویگن بھر جائے تو پھر اسلام آباد انہوں کٹ دیں گے. ہاں تو وہ گھر تو یہی کہہ کے جاتا نا کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں. ہاں جی ہاں جی, ویگن پر اندے ادھے گھنٹے بعد وہ پھر گجر خاں ہوتا ہے جی, اور اگلے 45 منٹیں جو دینے ہوتا ہے اوتھے بھی نہیں انہوں کھلون دیندے, پھر 1.5 گھنٹے بعد گجرات پڑ جاندے ہیں. اوتھے کو سواری لب جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر 2 گھنٹیاں بعد لاہور ہوتا ہے. شکر ہے خیر خرید سے بھائی لاہور پہنچ گئے. سر وہ بوفے بھی کرتا ہے راستے میں. بوفے کیا کرتا ہے راستے میں؟ منجی ہوٹل تھا جی. تو پھر کیا ہوا ہے, جہاں آدمی پتہ بھی ہے بوفے کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ جتنا مرضی کھاؤ اسے بوفے کہتے ہیں. اور سر منجا ہوٹل والوں نے میرے بھائی کو کہا ہوا ہے کہ ویگن ادھر کھڑی کرو گے تو جتنا مرضی کھاؤ. ہاں کیا بات ہے جی, تھوڑا جی اب بوفے شاپر جی بھی پوا لیں دے. ہاں تو بھائی جان کا بی پی لو ہو جاتا نا. بھائی جان دا کیوں بی پی لو ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کیڑی کیمیکل انڈسٹری ہے بیٹا. اے بڑے لوگوں دی بیماریاں نے بی پی لو. تو سیدھا کہو بھائی جان کہیں تا روٹی نہ کھان دے, انہوں نے ٹھیڑ چ کڑلا پھرن لگ پے. بولنے کیا ہوتی ہیں, تمہیں تو پھرتی ہوئی. میرا تو بی پی لو ہوتا ہے, میری کیمیکل انڈسٹری ہے. ہاں جی, پنڈ چ گوئے دی گیس بناوندا ہے اور اکو مجھ دے گوئے دی بناوندا ہے. جدن مجھ گویا باہر کر آوے دی انڈسٹری بند ہوندی. ایک مجھ ہے ان کے پاس, بندہ تھوڑا کام کر لے ستھرا کر لے. کیا کہنے اپنے لکھیا سنیارے والا کام کرن دے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگوں کی آپس کی لڑائی ختم کیوں نہیں ہوتی. جنید صاحب, بڑے خاندانوں میں جھگڑے تو ہوتے ہی ہیں. تیرے صدقے جوانو آپ آف ڈونگی گراؤنڈ ہے. تینوں لوے مولا, بڑے خاندانوں میں پتر ساڑھے کیڑے پٹرول پمپ آپس سے بناؤں دے ہیں, یا کیڑی شوگر مل دا فیصلہ نہیں ہون دے, یا کہ چاچے لینی ہے کہ پتیجے لینی. سویر دی روٹی کھا لیے تو شام دی لبن ٹور پہنے. جنید صاحب اینا دے کار تے بلی دودھ پین نہیں وڑ دی. ہاں جی, اسی اتے ملائی نہیں پاندے. اے گال نہیں جنید صاحب, نہ ہی بلی نو مارن واسطے نہ کار سوٹی ہے تے نہ ہی جتی. انہوں گالاں ہی اینیاں کو کٹ دینا کہ بلی نو اینا دے ویڑے وڑ دیں شرم آؤندی. کلام مرے بڑا ترہ بلی دے ناؤں ورگا موں. اصل حقیقت میں بتاتا ہوں آپ کو. بلی ان کے گھر دودھ پینے آئی ہے جی. چچا نے کہا بلی کو مر بھی, وہ باہر جا کے مر گئی. اچھا, بلی ایکچولی بچوں والی تھی. اس کے بچوں نے مشہور کر دیا کہ چاچا منوس ہے. وہ دن اور آج کا دن بلی ان کے گھر آئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا گھر چوہوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں جی, حالے نے بلی نو بڑی ہری کیا, چل دو میں پین پھرا چلیے چاچے نو منا لئی. میں کس لیے آؤں, میں تو اس شگرد کو نہیں تمہارے گھر بھیجتا, ادھر تو پہلے چوہے بہت ہیں. نہیں انہوں بھیج دے, اگر ایڈا ایڈا چوہا ساڑھے کر نہیں ہے گا. ایڈا تو صرف لاہور ریلوے سٹیشن پھرن دے آؤ, اور ریل گڈی آوے تو چوہے انچ دوڑ لانی شروع کر دیں جی میں سامان انہوں نے لانا. جی آپ کی لڑائی کب ختم ہوگی؟ جب یہ تنزانیہ کی نیشنلٹی لے لے گا. میری بات یہ یہاں پہ انفٹ ہے. میری بات سنیں. صبح الحمدللہ عید ہے, آج چاند رات ہے, خوبصورت موقع ہے کہ آپ آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بھلا کے ایک دوسرے کو گلے لگا لیں. ہائے ہائے ہائے, میں نہیں یہ گلے لگ سکتا. کیوں استاد جی؟ یہ گلے صرف برنول لگ سکتی. اچھا استاد جی میری بات سنیں, بلکہ میری ریکویسٹ سنیں. آپ بڑے ہیں, آپ اپنے بڑے پن کا ثبوت دیں. جیسا بھی ہے آپ کا بھتیجا, اس کو معاف کر دے, گلے لگا لیں. سادہ نہ کہو جیسا بھی ہے, پہلے کلیئر کرو کیسا ہے. اب میں کیا بتاؤں, جیسا آپ کو لگتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے. میں نے تو زہر لگ دے جی.
तो मुझे कौन सा वो रसगुल्ला लगता है? मतलब नहीं जो खुल के दसो सानू तुम्हारी बात। मुझे बताना नहीं आता ना, मैं तो सीरियस एंकर हूँ। कुछ तो बताए ना कि कोले दे पहाड़ों का बांदर, कुछ इस तरह की कोई ऐसी बात बताएं ना हमें। क्या बताओ, पेट्रोल सूंघने वाला नशेई है ये। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊँ आप? वाह वाह वाह, और दूर रख के सूंघ दे कि तेरे आग ना लगे। वो तो पेट्रोल खुद एहतियात करता है। वो तो मजाक कर रहे हैं, वो तो क्लास फेल है मेरे। वाह रे भाई वाह, तेरे सदके जावा है, चंगा भला सीनियर जर्नलिस्ट है। क्लास मरे तू केड़ियां बस च मंगण दी क्लास लेंदा। अच्छा चलिए छोड़े, आपके दरमियान आज सुलह में क्या चीज माने है, ओ क्या रुकावट है? ओ बाबूजी मैं तो बड़ी यार इनू माफ कीता और दिलों कीता जनाब, मगर हर हफ्ते कोई ਇਹੋ जी हरकत कर देना है कि अगले 2 महीने नु वेखण दे दिल नहीं जे कर। चले अब क्या कर दिया बेचारे ने? What happened? What happened? और मेरे ससुर साहब जेड़े आज नहीं आए और तुसी भी नहीं पूछे। हाँ, आज आपके ससुर नहीं आए, मैंने उनके लिए खास तौर पर खिड़की में रोटी का टुकड़ा लगा के रखा है। क्या जी? और ओदा नहीं पे खोल के दस दे कैसा। तो मेरे सौरे वास्ते खास तौर पे कड़की नहीं लाई होंदी ते खैर जी, खास तौर पे लाई। नहीं वाकई वो क्यों नहीं आए? ए ते दुखों ही इसका क्या ताल्लुक है? एडी बड़ी चवल जे नाम मुराद और परा नीचे बैठा टेर हाँ, खुदा का खौफ कर। इस तरह जब आप बात करते हैं, अब माने या ना माने, वो आज की यूथ की हार्ट थ्रॉब बन चुके हैं ये। कौन जी? ये मेरे सामने नबील साहब जो है, नबील हाय हाय, दिलों के धड़कन है नौजवानों को। कौन क्या कर तेरे रहे हैं आप? सदके जावा मरे, ना बुलबुले वाला नबील चंगा ते ना तू चंगा। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਬੀਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ। फैसलाबाद ਦਾ सिर्फ कपड़ा चंगा, नबील नहीं ਉੱਥੇ मत कहो चाचा इस तरह। जिस तरह सियासत का नबील गोल है ना, इस तरह मेरा नबील गोल है। की मौत दा कुआं बनाया। क्या कहने इस नामुराद दा रिश्ता लेके चला गया जी मेरे सौरे वाला। ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਗ 버ਗਰ ਦਾ? हाँ जी, वो पर डबल टिक्की वाला। मुझे अच्छा समझ नहीं आया, आप उस्ताद जी के हम जुल्फ बनना चाहते हैं? हाँ जी, एदी जुल्फ ते लानत, जुल्फ ते देखो जरा, सुभान अल्लाह, जुल्फ लगती नहीं कलगी लगन नहीं। और तुसा कलगी वाला कुकड़ वेखिया होना, कलगी वाला मोर वेखिया होना, कलगी वाला शुतरमुर्ग वेखिया होना, कलगी वाला कट्टा पहली ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੁਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਹਦੂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਪੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਲੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੜ ਲਈ। और स्लेट भी अपनी मर्जी की पढ़ता जी। एडा शोखा है, एक दुकानदार ने लिखे है बड़ा गोश्त 96 रुपए पाओ, ते ओदी स्लेट पुठी करके कहंदा भाई जी मैं ते 69 ही देने ने जेड़े लिखे। उस्ताद जी आपने टेंशन नहीं लेनी, नहीं मैं टेंशन को लेनी जुगता तेनों होनी। लड़कों को बातें होती हैं, लड़की वाले लड़कों को बातें करते हैं। ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆ। पुत्र तू लड़का देख, तू लड़की वाले ते लानत पा, लड़का देख जरा तो। भाई तेरे सदके जावा मरे लड़कियां दे गट्ठे। चले उस्ताद जी, अगर उन्होंने रिश्ता मांगा ही है तो ये उनका हक है। और सरकार मेरी साली तालीम याफ्ता है, ये तलाक याफ्ता वो भी 2 बारी। तो पर इन्होंने सजा याफ्ता का नहीं पता। तलाक क्यों हुई 2 दफा? अजी पहली बच्ची ते बेचारी मशरकी सी, ਉਹਨੇ ਤੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਘੁੰਗਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਕੀਤਾ। 6 दिन ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। अच्छा। 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੱਬਾ ਜੀ मैं ससुराल आई हाँ या किसी जलसे च आई हाँ? क्यों? वालिद ने पूछा क्या हुआ बेटे? मैंने कहा अब्बा जी 6 दिन होए ने मैनू इन्हां दे घर आया ते 6 छिका 36 यार इस बंदे ने मेरा पैर में दे। प्यो ने अगों हौसला दिता है कि पुत्र फिर की होया पैर में दिया ते? ओ बच्ची कहंदी अब्बा जी जदों तुसीं मुंडा वेखण गए सो तुसीं सिर्फ ओदा मुंह वेखिया, ओदे पैर नहीं वेखे। ਉਹਦਾ
ਪੈਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਰੂਲੇ ਜਿੱਡਾ ਪੈਰ 36 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਮਿੱਤੇ ਸੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਪਣਾ ਵਰਗੇ ਹੋ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਾਲਦ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਲੈ ਗਈ मैं बताता हूँ जी एक्चुअली हुआ क्या हमारा फॉरेन टूर था हम बैले डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे अच्छा बस बेचारी आ गई फिर मेरे बैले की जद में क्या क्या बैठा हूं? आप पहले मुझे मार खुद ही क्या पास करो यार अच्छा जी दूसरी लड़की ने क्यों तलाक ले ली ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਰਾ ਮਾਡਰਨ ਸੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਏ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਮਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਉਸ ਕਰਮਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਆਂਦੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਰਮ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਾ ਲਈ ਹਾਏ 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 समझ रहे हो ना पॉइजन ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ उस्ताद जी क्या हो गया आपके ससुर ने आपको भी तो रिश्ता दे ही दिया था यही तो मैं क्या आपको क़यामत टूट पड़ी थी सर जी इनके ससुर ने मुझे खुद कहा था कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखो ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ अब पहली बेटी इनको दी है चचा को हालात आपके सामने है ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ यही मफलर है एक जब ये शादी करने आए थे तब भी यही था यही बाजा वही डब्बे खाए कुछ भी नहीं चेंज हुआ इन लोगों का ये ढोलकी वाला चेंज होता है क्योंकि ये पैसे देते ही नहीं अच्छा ਹਾਂਜੀ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਆਪੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हाँ तो मैंने इन लोगों को भला सोचा ना ऐसा मोटा ताजा रिश्ता कहीं से मिलेगा मोटा ताजा। चाहे इसको दामाद बना लो चाहे इसके कंधे पे खड़े होकर दीवार बना लो ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार जुनैद असल में वो मेरे जो महल्ले के लड़के हैं ना यंगस्टर सारे यूथ जिन्हें कहते हैं वो सारे कह रहे थे कि ये अंकल ये सही ठंड नहीं पड़ी वो चैंपियन ट्रॉफी की जो आप तमाल डालते हैं ना वो आपने डाली है ठीक है मगर ले हमारा राज्य नहीं हुआ ये थोड़ी सी और तमाल डाल काफी दिन गुजर चुके हैं अब जाने दो यार। महल्ले के बच्चे ही कह रहे हैं तुम्हें पता है मुझे तो खुद बड़ा ऑर्डर लगता है ऐसे ऐसे करते हो देख लो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अपनी दानिश साइड पे रखोगे और यूं यूं यार करोगे मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है सारी दानिश अपनी साइड पे रखो दानिश भी इतनी ज्यादा चलो जो मुश्किल है तो फिर ना करो डांस को इस तरह नहीं कहना कहना है महल्ले के लड़के वाकई जोर लगा रहे हैं हाँ वो बड़े जोर लगा रहे हैं महल्ले के लड़के जो सारे ना क्रिकेटर वो कहते हैं कि जीजी डांस करो उन्होंने कहते हैं। बड़ी फरमाइश की है कि ये वाला स्टेप मिस ना हो तुम्हारी मेहरबानी अगर कर दे जी कर दे सर ये वाला step ढिल्ला कर कह दे। रहा है कर दे जी अल्लाह खुदा की कसम मुझे खुद कहता होता है कि यार तुम डांस बहुत अच्छा अच्छा ये वाला स्टेप जरूर करना इसके लिए कितना आसान है इतना सा मुंह ऐसे ऐसे कर लेता है तुम कैसे करोगे ऐसे ऐसे असल में सवेरे ईद है ना तो यार ईद की खुशी दुबाला हो जाती है लगाना यार यार म्यूजिक तुम्हारी मेहरबानी बहुत शुक्रिया ऐसे सच्ची बात है ये है कि खुशी अभी तक पहले दिन की तरह महसूस हो ताजा ऐसी वैसी जिस तरह उधर भारत में अभी तक जो है ना वो मीडिया में से साड़ निकल रहा है धुआं निकल रहा है बकायदा चिंगारियां निकल रही हैं वैसे मैं तुम्हें एक बिजनेस बताऊं
हिंदुस्तान से टूटे हुए टीवी इंपोर्ट करो, ठीक करो, दुनिया को एक्सपोर्ट करो। बहुत अच्छे। जितना जितना मोटा डंडा उन्होंने अपने टीवी पे मारा वो अब कहाँ रिपेयर होने। जो हालात हैं इस वक्त जी, उस हवाले से एक डॉक्टर ताहिर शहीर ने नयम लिखी है, वो आपको पेश कर रहा हूँ। जी जी। सुनो मुझसे जरा ये दास्तां वीरात कोहली की, गुजरती रोज है तकिए भगोते राहत कोहली की। किया आमिर ने 2 गेंदों पे उसको 2 दफा आउट, बने रन 5 मर के इतनी थी औकात कोहली। हिसाब अपने उतारे अगले पिछले हमने भी सारे, हुई जब मात भारत को, हुई जब मात कोहली की। हुए दावे गलत झूठी हुई हर बात कोहली की, कि जब 158 पे चली बारात कोहली। उसे बोलो निकाले अब भी वैसे ही जुबान बाहर। हाय उसे बोलो निकाले अब भी वैसे ही जुबान बाहर, बहुत शौकी थी फाइनल से कबल हरकत कोहली की। फारन यार, हमारी फतह अपनी जगह, लेकिन कोहली की ग्रेटनेस अपनी जगह। एज ए प्लेयर तो वो ग्रेट प्लेयर है, जाहिर है हम तो अपने फाइनल का मजा ले रहे हैं, उसके वो हमारा राइट है। हाँ जी, उसके करैक्टर होने पे तो किसी को शक नहीं है। लेकिन अब अड़ेगी नहीं किसी बात में लात कोहली की। जी, क्या है आज की पहली खबर? आज पहली खबर पे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से है। चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद भारतीय मीडिया ने हिंदुस्तानी कौम को कहा है कि वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स देखना बंद कर दें, सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। वो मेरे अमाल तुम्हारी वजह से कहा है। मैं कहता हूँ कि सूरत हाल इतनी जल्दी नहीं नॉर्मल होनी। हाँ जी। वो टीवी बंद कर देंगे तो ख्वाब आने तो नहीं ना बंद कर सकते। ख्वाबों में आके मोहम्मद आमिर ने कहना उठो तो चलो विकेट पे खड़ो। सही कह रहे हो, पहले उनकी ख्वाबों में आता था वसीम अकरम और सईद अनवर, और अब आएगा मोहम्मद आमिर और फखर जमान। मोहम्मद आमिर और फखर जमान को छोड़ो, किसी तरह तुम उनके ख्वाबों में अपनी एंट्री डालो, खेलना ही छोड़ देंगे हमेशा के लिए। याहिर है बाबे तवीया वाले को नहीं जान छुटनी तो खेडना किथों। बैड लाइट की वजह से नहीं खेल पाएंगे। मैं कहता हूँ जी जो मर्जी कर ले, अगले किसी मैच तक तो उनकी ख्वाबों में आना ही आना है। इन्हें भी थे, फखर ने भी थे, मोहम्मद आमिर। ये तो अब अगला कप कोई होगा, उसमें दोबारा वो इंशाल्लाह हारेंगे, इंशाल्लाह। फिर उनका डर ले जाए। हाँ जी, जाहिर है फिर उनको आदत पड़ जाएगी। एक अमेरिकी कंपनी ने दावा किया है कि अब आंख से झूठ का पता लगाया जा सकेगा। बहुत अच्छे। ये मेरा ख्याल है उधर ही लगाया जा सकेगा जब मशीन इधर आ गई ना, तो उन्हें झूठ नहीं फड़ना, उन्हें अपना सिर फाड़ लेना। जो 5-6 सियासतदान उस मशीन अगे भाए ना, तो मशीन चो टू 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 टू। वो छोड़ो, हमारा अजीजी कितना बुरा लगेगा घर दाखिल होते हुए। वैसे भी हमें इस मशीन की लोड़ नहीं है, हमारे यहाँ तो हर शादीशुदा आदमी के घर में ये मशीन होती है, ऑटोमेटिक, जो जाते ही आंख देख के पकड़ लेती है। आंख नहीं, वैसे ही देख। हाँ जी, रंग उड्डे वेख के फड़ लेंदी है मशीन। नहीं, इस मशीन बेचारी ने तो बाकी 6-7 सियासतदान भुगतने हैं, तो अपने मालक को फोन कर देना कि भैन मैनू आके इथों ले जाओ, इस मुल्क च मैं नहीं जे बसना। इस मशीन को मेरा ख्याल है एवं कोई 7-8-10 महीने इधर गुजारने दो पाकिस्तान में। इसने खुद कहना है कि मैं झूठ फड़ने वाली मशीन नहीं, मैं फ्रिज हाँ, मैं मेरे च पानी ठंडा कर लो, मैं फ्रिज हाँ। थैले का झूठ नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों? मशीन एडी ऊंची है, थैला एडा। हाँ जी, मशीन की अख में अख पड़नी नहीं है, मशीन ने उतो इनू वेख के कहना काका तू ते परा हो। आओ जी, केड़ा बंदा है? जी सुने, एक चीनी शख्स का सर के बल खड़े होकर साइकिल चलाने का मुजाहरा। ओह माय गॉड, ये मेरा ख्याल है साइकिल कोई हल्की वेट की बना बैठे हैं, तो उस पे वजन ज्यादा ना डालने के लिए वो सिर पर ने खड़ा होके चला रहा है। जी, अगर सिर पर नहीं खड़ा हो जाए बंदा तो फिर पूरा वजन नहीं साइकिल पे आता। फिर भी साइकिल पे आना भाई, मेरे पे आना क्या बात फटे मुंह इसके पुठे होके चलाने। अगर सारा भैया सी पे रहना तो सीधा होके चलावे, कदली सिर पर नहीं होगे।
या मेरा ख्याल है कि ये फिर चीनी बशिंदा नहीं है, ये कोई काफली का कारकुन है, पुट्ठा खड़ा होकर साइकिल चला के तो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है कि साइकिल के लिए सर तड़ की बाजी लगा रहा हाँ वैसे ये हो सकता है यार। है। और मेरा ख्याल है अगर ये हो सकता है तो फिर ये कोई और कारकुन नहीं है, सूफी मुद्दा होया है। नाज़रीन हमें क्या लेना, एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार जुनैद, इस ईद पे चैंपियंस ट्रॉफी की तो एक खुशी जो हुई है दुबाला वो हुई है जी। एक और मुझे बहुत खुशी है आजकल हो रही, बल्कि ईद माशाल्लाह आ गई है। अमान से मेरे तो दिल में लड्डू फूट रहे हैं। अल्लाह पाक नजर ना लगाए, बहुत अरसे के बाद कराची की रौनक उसी तरह जो है ना वो नजर आनी शुरू हो गई। कराची एक ऐसा शहर है जो हमने बचपन में देखा हुआ है, हमारे वहां रिलेटिव जो रहते हैं तो उनको पास जाया करते थे, छोटे छोटे थे जब, तो इंतहाई रौनक वाला शहर, बाखुदा ऐसे लगता था कि किसी और मुल्क में आवे। इतना वो बार रौनक और चांद रात पे कराची की रौनक तो बिल्कुल बामे अरूज पे होती थी, देखने वाला होता था कराची। और बीच में फिर कई साल नजर लग गई हमारे प्यारे मतलब बर्बाद। हमारी ये जो कराची में ईद की जो सेलिब्रेशन है या ये जो चांद रात की सेलिब्रेशन है, इसको सबसे ज्यादा जिस कल्चर ने बर्बाद किया है टेररिज्म से भी ज्यादा, वो भत्ता कल्चर ने किया। जाहिर है। थोड़ा सा तुम अपनी याददाश्त को पीछे ले जाओ तो 2014 वो बदकिस्मत साल था जब भत्ता कल्चर अपने अरूज पे था और उसने बिल्कुल जो ये चांद रात की खूबसूरती थी इसको गहना के रख दिया था। और आलम यह था कि कुछ जो कराची के बाजार थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि भत्ता खोरो, ये जो माफिया है ये इनकी गिरफ्त में, यही यहाँ पे रूल करते हैं। ये ओल्ड सिटी एरिया था, मरकजी क्लास मार्केट थी, मोतनदास मार्केट, बोल्टन मार्केट, कागजी बाजार, खारादर और जोड़िया बाजार। ये 6-7 बाजार तो बिल्कुल इस तरह लगते थे कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी, उससे दुकानदार भी बेचारे खौफ से था, और जो वहां पे खरीदो फरोख्त करने के लिए या शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते थे लोग, वो भी डर के निकलना छोड़ गए। और आलम पता क्या था कि यानी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह ये भत्ता कल्चर के माफिया के खात्मे के बाद ये जो कराची में इस दफा जो ईद पे कारोबार हुआ है ये 220 अरब रुपए से ज्यादा का हुआ है। और ये भत्ता का जब अरूज होता था भत्ते का, उस वक्त ये 100 अरब से भी नीचे चला गया, तो दुगने से भी ज्यादा अब अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया। और पूरे पाकिस्तान में जब ये चांद रात या ईद पे जो पहनने की चीजों का कारोबार होता है ना, ये 450 अरब रुपए से ज्यादा का होता है। ये तो सिर्फ कपड़ों की बात कर रहे हो, जूते नहीं, कपड़ों की नहीं मैं बात कर रहा, यानी जूस पहनने में सब कुछ आता है ना, जूते भी पहन, जूते में भी आता अच्छा है। उसमें टाई नहीं आती होगी, टाई तो बांधते हैं। तो आता है, फेरल पहना जाता है। ऐनक भी नहीं आती, ऐनक लगाई जाती है, पहनी नहीं जाती। अच्छा जी, जब 2014 में मैं कराची में बैंक में नौकरी करता था, हाँ हाँ बैंक में नौकरी करता था, वो चाय खोखे से बैंक में चाय यही देने जाता। अल्लाह माफ करे यार, 2014 में सिर्फ भत्ते ईद से चंद दिन पहले आखिरी रोजों में 17 ताजरों को भत्ता ना देने पे गोली मार दी गई थी और 14 ऐसी दुकानों पे जिन्होंने भत्ता नहीं दिया था उन पर दस्ती बमों से हमले किए गए थे। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस ऑपरेशन के नतीजे में रेंजर्स ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नजर ना लगाए और ज्यादा महफूज रखे प्यारे हमारे शहर कराची को। कराची पूरे पाकिस्तान का माथा है, वो खूबसूरत नजर आना चाहिए और फ्रेश नजर आना चाहिए। अल्लाह का वाकई लाख लाख शुक्र है, बड़ा ही मजा आ रहा है इस ईद पे इस बात का भी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि कुछ काम सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारे करने के भी हैं। हमने ईद की जो फेस्टिविटी है ना, जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि उसको बढ़ाने की जरूरत है ईद के रोज, हमने उससे एक दिन पहले ईद की जो फेस्टिविटी है ना सिर्फ उसको चांद रात तक महदूद कर लिए और उस पर भी जुल्म यह किया है कि चांद रात मनाना हम सिर्फ बाहर जाके दोस्तों के साथ खाना खाने का नाम रख लें। सारी रात जागना जी, सारी रात खा रहा है, को आवारा फिर रहा है, को स्कूटर चला रहा है, को वन व्हीलिंग कर रहा है। अच्छा, अब फिर कोई दुकानों से पूछता फिर रहा है कि भाई जी रंग गोरा करने वाली क्रीम कितने मिलेगी? सारी रात मिलनी नहीं, रंग कितों गोरा होगा। और दुकानदार फिर पूछता है भाजी कितने वास्ते चाहिए, तो कहता है कि मेरे वास्ते, कहते नहीं जी। और कोई विग धोखे से 24 घंटे
चमत्कार। कोई चांद रात अपने बिग तो बैठा है, वो नहीं उनको खुश कौन है? अच्छा नहीं यार, नहीं ऑन द सीरियस नोट, प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, ये जो चांद रात पूरी जाग के गुजारने का जो नुकसान है वो ये हो रहा है कि नौजवान खास तौर पे ईद की नमाज पढ़ना भूल जाते हैं, भूले सोए रहते भूल नहीं जाते, सोए रहते हैं, और बल्कि सॉरी टू से माएँ भी सोई रहती हैं, ईद की नमाज मिस कर देते हैं। जी जी जी। और अगर कोई अलार्म उलार्म लगा के हिम्मत करके सवेरे उठ के नमाज पढ़ भी ले फैमिली कोई, तो वो वापस आके सारे इस तरह गिरते हैं जैसे बैंक के बाहर एक साइकिल डिगे ते अगलियां 6 नाल कट्ठियां। और नहीं, उससे पहले ये मुसीबत ये है कि वहां पे जामे मस्जिद जहां पे आप ईद पढ़ते हैं, ईदगाह से आप यूं भागते हैं जैसे पता नहीं आपके पीछे कुछ चोर डाकू लग गए। भाई आप ईद का मकसद ये है कि इतने बड़ा जो इज्तिमा है उसका मकसद ही ये है ईद का एक दूसरे से मिलना, वहां पर इंतजार करें, एक दूसरे से जबरदस्ती मिलें, जिनको हम नहीं भी जानते उनसे तारुफ हासिल करें, प्यार मोहब्बत तकसीम करें। हमें वापस भागने की जल्दी होती है और वापस भागने का मकसद भी सिर्फ ये होता है नींद पूरी करनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बात, जो लोग जाग भी रहे होते हैं ना सारा दिन, चांद रात को अगर ना भी बाहर फिरें, सो जाएं, सुबह फ्रेश होते हैं सारा दिन, वो वही बात जो पहले भी एक दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारा दिन घर से नहीं निकलते। घर में चूंकि टेलीविजन चल रहा होता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम लगे होते हैं और वो बैठ के लोग देखते रहते हैं। मकसद ईद का जो है ना वो हम मजरू कर देते हैं। सही। बाहर निकल के दोस्त अहबाब को, महल्लेदारों को मिलना, बहन भाइयों को मिलना जुलना जो है, फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को जाके सलाम पेश करना, उनको ईद मुबारक कहना और उनसे फिर ईद के लिए 100 रुपया भी लेना। ये बड़ी मजे की चीज अच्छा है। मेरी बात में मैंने नोट किया कि तुम्हारी गुफ्तगू का जो महवर और मरकज है वो ये है कि दूसरों के घरों में जाया जाए, तुम्हारे घर में आके कोई सवैया ना खाए, तुम ही जाओ, तुम ही दी लो यार। आ जा फिर साडे घर ते जदों पकाइए जुड़ जांदियां ने से। मैं तो कह रहा हूं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ आ जाइए, चलो जरा फ्रेश होंदियां से। गोगा कहता है चाहे जुड़ी हो, गोगा खायत है, ये जुड़ी नहीं खायत, बल्कि ये कहता है भाई जी ये मुंह च रख के भी ते दंदां नाल जोड़नी ही नहीं, ते प्याले च जुड़ गई ते फिर की। सर जी ये तो इल्जाम ला रहे ने, मैं नहीं कभी भी वेख्या सेवियां जुड़ियां ने या नहीं जुड़ियां, मैं तो खाना ही अखा बंद करके। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਬੇ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਤੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। और एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, चूंकि ईद का दिन माशाल्लाह आ गया है, एक और रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जो घर में बुजुर्ग हैं ना, जो उठ के बाहर नहीं आ सकते, जो बेड के ऊपर बेचारे फिक्स हो गए हुए हैं, उनके पास खुद जाके बैठना ईद वाले दिन, उनके साथ बातें करना, उनको ईद मुबारक कहना, उनसे दुआएं लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा एक और बात कि ईद वाले दिन एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ये जो हमारे सोशल स्टेटस हैं इनको अगर खत्म नहीं कर सकते तो कम जरूर करने की कोशिश करें कि अगर कोई आपसे, सबको मिलना चाहिए। अगर बेल मुझे पता चला कि ना वो आप मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके स्टेटस से नीचे का बंदा है तो उसको कह देते हैं वो घर नहीं है। और अगर कोई अच्छा है जैसे आपको काम है, आपके स्टेटस का बंदा है, फिर भाग के जाते हैं, कुर्सियां भी, चाय भी, सवैयां भी। ये मेरा ख्याल है ईद के दिन को इस अपनी आदतें बद से एग्जेम्प्ट कर देना। जी 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 जी। अगर कोई मस्कीन आ गया आपके घर में तो आप नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। और पुत्र जेड़ा कीमा पुने है वो देखे, उठा लो पुत्र मेरे आगे से उठा लो, अजीजी अंकल को दो, और दिल करे शायद अजीजी अंकल को देने की बजाय उठा के अपने कमरे में ले। ये बेचारा उत्थे ही बैठा फोटोआं वेखण। अच्छा जी, आज हमारी कमाल पार्टी क्या लेके आई है? ईद के नजदीक आपको सड़कों पर हर तरफ पुलिस के नाके नजर आते हैं, उस हवाले से इल्तिजा है जी। मिलता कर कर हार गया मैं, बाबा जान छुड़ा दे मेरी, जालिमा तो पुलिसा हटा दे, सोने आए तो पुलिसा हटा दे, जालिम आए
सोने आए तो नाके चुका दे, जालिमा तो नाके झुका दे, सोने आए तो पुलिसा हटा दे। कैन तलाशी असले दिए, खोल के वेखण बटवे, बटवे विच केड़ा बंबे वखा दे, बटुए विच केड़ा बम्बे वखा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, दो उस्ताद, उस्ताद 3 कर लो, किसी का भला हो जाएगा। दीवाने दो ही अच्छे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, बयान दे दे के सियासत इन्हें चमकाने दो। जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। शॉपिंग कर कर निकलो फौरन, रास्ता रोक के कहंदे, साडे लई जो ले आई फड़ा दे, साडे लई जो आई फड़ा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। निक्के दाए साइज पूरा, ओ भी भतीजा थाडा, सूटे फौरी मैनू इधर फड़ा दे, सूटे फौरी मैनू इधर फड़ा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, मजा देते हैं समोसे अगर हो दाने दो। जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। चेक करन लुआ के जराबा, कहन चे पैसे ना निकलन, 20 रुपए दा इजी लोडी करा दे, 20 रुपया इजी लोड करा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, रोजे में जो खाए सरेआम उसे थाने दो, बेशक जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। डाकू आड़ू आखण जाओ पर वर्तावो पूरा, माल जो लुटे आए अद्धा फड़ा दे, माँ जो लुटे आई अद्धा फड़ा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, जिसको खुद कुछ नहीं आता कहे समझाने दो। जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। साडे लई दिक दिन आउंदी, इन्हां लई पूरा महीना, रोजेदारां दे ने होश उड़ांदे, रोजेदारां दे ने होश उड़ा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरे की जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, तकिया पतला है मेरा रुई तो भरवाने दो, जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। डाकुआं तो बच गए सांपर, अक्के पै गईयां पुलसां, रब्बा इन्हां कोलों भी हुण बचा दे, रब्बा इन्हां कोलों भी हुण बचा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, तकरीर न सुनो सदर की उसे धूप तो लगवाने दो, जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे। ओ जेड़े बोलते तेज ने कहिंदे, ओ जेड़े बोलते तेज ने कहंदे, जेड़े बोलते तेज ने कहिंदे, पैसा नहीं मैं
तू कर मेरी जेब छिपा दे, इंज तू कर मेरी जेब छिपा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे, जालिमा तो पुलिसा हटा दे, अब पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, फिर ये क्यों मांगते हैं मदद आपकी?